میاوالی کے باسی شدید گرمی کی لپیٹ میں دن بھر درجہ حرارت 44 جبکہ شام کے اوقات میں 42 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شہریوں نے گرمی سے بچنے کے لیے نہروں کا رخ کر لیا۔ میاوالی کے باسی دوہرے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ شدید گرمی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ نے زندگی عذاب بنا دی۔ ایسے میں شہریوں نے گرمی سے بچنے کے لیے نہروں کا رخ کر لیا۔ کہتے ہیں گرمی کے باعث مزدوری کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ نہروں پر نہا کر گرمی کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ دوڑ آیا بھائی کوئی ٹھڈے تھی وہاں گرمی بہو ہے، ٹھیک ہے، اتنی گرمی ہے کہ بندہ پنگور بڑھتا پیا ہے۔ آج بہت گرمی جی، اتنی گرمی ہے کہ چکر آنے لگا ہے، اور جہاں جہاں تے پانی پیتے ہیں ٹھڈا پیتا ہے لیکن فرق بات نہیں آتا بھی آ کے نہریں دھونے لگا ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ جاتا ہے مگر ان دنوں بارش بھی نہیں ہو رہی۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاوالی۔ سکھی سرور میں گڈز ٹرانسپورٹرز ایکسل لوڈ مینجمنٹ ایکٹ کے خلاف سراپا احتجاج۔ گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن اور سٹون کریشر انڈسٹری کا مالکان کا احتجاج، دھرنا، پہیہ جام ہڑتال 8ویں روز بھی جاری۔ سخی سرور میں گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن اور سٹون کریشر انڈسٹری مالکان کا احتجاج 8ویں روز بھی جاری رہا۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ایکسل لوڈ مینجمنٹ ایکٹ کے خلاف نعرے بازی۔ گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کی کال پر تمام گڈز ٹرانسپورٹ اور سٹون کریشر انڈسٹری سمیت تمام کاروبار 8 روز سے بند ہیں۔ پہیہ جام ہڑتال کی وجہ سے ہزاروں مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر اور گڈز ٹرانسپورٹرز کے مذاکرات ناکام ہونے پر احتجاج میں شدت آ گئی ہے۔ لگتا ہے کہ ضلعی افسران کو 8 دن سے جاری ہڑتال ختم کرانے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ہڑتال کے باعث جنوبی پنجاب میں پتھر، بجری اور ریت کی سپلائی معطل ہے۔ ٹرانسپورٹرز رہنماؤں کا گفتگو میں کہنا تھا کہ 1 لاکھ کے قریب ٹرک مالکان، ڈرائیورز، مزدور ہڑتال کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے ہیں۔ پنجاب حکومت مطالبات منظور کر کے لوگوں کو معاشی تباہی سے بچائے۔ ہمارے مطالبات ہیں حکومت ایکسل لوڈ مینجمنٹ کے حوالے سے نہ سلائی سطح اور صوبائی حکومت کوئی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کری۔ ہمارے ساتھ پورا بلوچستان رابطے میں 5 تاریخ انہوں نے کال دے دی ہے، انشاءاللہ پہیہ جام ہڑتال بلوچستان بھی کر رہا ہے۔ خدا را یہ پوزیشن سنبھال لے، اگر یہ صورت حال کی تو پاکستان مشکل حالات میں چلا جائے گا۔ سٹون کریشر رہنما رحیم بخش نے کہا کہ ہڑتال کے باعث سٹون کریشر انڈسٹری کو روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ پہلے ہی مہنگائی کے طوفان نے تباہ کر رکھا ہے۔ اب ایکسل لوڈ مینجمنٹ ایکٹ صرف ٹرانسپورٹرز کے معاشی قتل کے لیے بنایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز، چیف سیکریٹری پنجاب زاہد اختر زمان دلچسپی لیتے ہوئے مسئلہ حل کروائیں۔ لوگوں کے اوپر پہلے اتنی مہنگائی کا بوجھ ہے، مہنگائی میں لوگ جو ہے نا پسے ہوئے ہیں۔ ابھی جو ہے نا وہ ہر چیز کو جو ہے نا اپنے جو ہے نا لوگوں کے بس سے، عوام کے بس سے جو ہے نا باہر لے کے چاہ رہے ہیں۔ میں لوگوں مطلب یہ مطالبہ کروں گا کہ خدا را عوام کے اوپر، اپنے پاکستان کی عوام کے اوپر رحم کرے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز اور سٹون کریشر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ایکسل لوڈ مینجمنٹ ایکٹ کسی صورت قابل قبول نہیں۔ مطالبہ تسلیم ہونے تک پہیہ جام ہڑتال جاری رہے گی۔ کیمرامین حسنین رضا کے ساتھ علی موسیٰ رضا، روہی، سخی سرور۔ ملتان میں سبزیاں اور پھل بدستور مہنگے۔ سرکاری لسٹ میں ادرک 20، لہسن 6 روپے سستا ہونے کے باوجود مہنگا فروخت۔ ادرک 570 کی بجائے 700 روپے فروخت ہونے لگا۔ تون میں خود ساختہ مہنگائی کے کاری وار، دکانداروں نے سرکاری ریٹ کی دھجیاں بھی کھیر دی۔ پیاز اور ہری مرچ 84 کی بجائے 150 اور ٹماٹر 96 کی بجائے 160 روپے کلو فروخت۔ شملہ مرچ 90، سبز دھنیا 120 اور آلو 70 روپے کلو۔ شہری آم 160 کی بجائے 270 جبکہ سندھی اور انور ٹول 180 کی بجائے 300 میں دستیاب۔ مالدہ سرولی 84 اور 64 کی قیمت 180 روپے کلو مقرر۔ چیری 800، لوکاٹ 200 اور فالسا 290 روپے فی کلو فروخت۔ خربوزہ 100، گرما 200 اور سیب 350 روپے کلو دستیاب۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے سبزیوں اور پھل سستے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ تورنڈا محمد پناہ میں LPG مافیا بے لگام، شہریوں کو سرکاری ریٹ پر فراہمی ممکن نہ ہو سکی، قیمت 280 سے 320 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ ترنڈا محمد پناہ میں LPG مافیا آؤٹ آف کنٹرول، حکومتی ریٹ کی دھجیاں بکھیر دی گئیں۔ دوسری جانب غیر قانونی ریفلنگ کا سلسلہ بھی دھڑلے سے جاری ہے۔ فاصلے اقدامات نہ ہونے سے لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ شہری کہتے ہیں اوگرا کا ریٹ 234 روپے فی کلو ہے، لیکن 280 سے 320 روپے فروخت کی جا رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی خاموش ہیں۔ گیس کو 300 روپے، 310، حالانکہ جو حکومتی ریٹ ہے 234 اور 35 روپے ہے، لیکن جو ہے ساکو جرا ملتا پہ 310، 320 بلکہ 300 تک ملتا پہ۔ دکاندار کہتے ہیں حکومت اعلان تو کر دیتی ہے مگر عمل درآمد کوئی نہیں کرتا۔ پلانٹ مالکان گیس مہنگی دیتے ہیں، حکومت سرکار کی قیمت پر عمل درآمد کرائے۔ گیس بھیجا 280 روپے کلو بھی جانے کڑے سے
कंपनियां अगर गैस सस्ता ॾेसनि असांखे त असां गैस सस्ता विझूं, कंपनियां असांखे गैस महांगा ॾींदा पिया, असांजी गैस थोड़ी महंगी विझंदा पिया। ये वजह तो शहरी परेशान हैं। शहरियों ने आला हुक्म से एलपीजी माफिया को लगाम डालने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरंडा, मोहम्मद पना। चिश्तिया में सीवरेज के नाकिस इंतजामात, गली मोहल्ले नदी नाले में तब्दील, ताफुन ज़दा माहौल से शहरी परेशान। चिश्तिया इंतजामिया की नाअहली शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। म्यूनिसिपल कमेटी की नाकिस कारकर्दगी की वजह से शहर भर का सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया। गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। शहरियों का कहना था कि गंदगी के बाइस मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। कई बार इंतजामिया को दरख्वास्त दी लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब गुजरते हैं तो कपड़े भी खराब, नमाज पढ़ने जाते हो तो सारा कुछ खराब है, बच्चे को बाहर नहीं निकाल सकते हम। तो आला काम से भी हमने कहा है, कोई भी नहीं आता इधर सुनने हमारे। शहरियों का मजीद कहना था कि बल्दिया मुलाजिमीन घर बैठकर तनख्वाह ले रहे हैं, हर माह लाखों रुपए फ्यूल का बिल पेश करते हैं लेकिन काम नहीं करते। इंतजामिया बल्दिया मुलाजिमीन के खिलाफ नोटिस ले, शहरियों का मुतालबा। हमने बहुत दफा कहा है, वो कह रहे हम आप चले, हम आ रहे हैं आपके पीछे, आधा घंटे का टाइम दे दे, एक बार भी नहीं आए। कोई कार्रवाई आपके सामने है, कोई भी नहीं हमारी सुनता। शहरियों ने जिली इंतजामिया से सीवरेज मसाइल को जल्द हल करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद उबैदुल्ला के साथ जाहिद हुसैन, हाशमी, रूही, चिश्तियां। बहावलपुर की कायद-ए-आज़म कॉलोनी में कब्रिस्तान जाने वाला रास्ता बंद, जनाज का गुजरना भी मुश्किल हो गया। इलाका मकीन जिला इंतजामिया और पाकिस्तान रेलवेज के खिलाफ सरापा एहतजाज। कायद-ए-आज़म कॉलोनी बहावलपुर के मकीन कब्रिस्तान का रास्ता बंद होने पर सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठाकर रेलवे इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था कि 50,000 आबादी का रास्ता बंद कर दिया गया है, जनाजा कब्रिस्तान ले जाना भी मुश्किल हो गया है। पुल नहीं हमारे पास, आए दिन कोई ना कोई हादसा हो जाता है जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। तो कब्रिस्तान जाने वास्ते भी रास्ता नहीं है, इन लोगों ने लाइनें लगा के बंद किया वो रास्ता। तो दूसरा जनाजा, पिछले दिनों जनाजा भी गिर गया उधर, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। आके खुद दे सकते हैं मौका। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता रोज भी रेलवे क्रॉसिंग के दौरान जनाजा गिर गया, जबकि हजारों अफराद का शहर में बराह रास्त दाखिला भी बंद है। शहरी स्टेशन की दीवारें फलांगने के दौरान हादसा का शिकार हो जाते हैं। रेलवे इंतजामिया लोगों को ज़दोकोब करती है, फाटक पर फ्लाईओवर तामीर किया जाए। एम्बुलेंस तक यहाँ पे नहीं आ सकती, इतनी जंप खड्डे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक जाते आगे कब्रिस्तान भी इन्होंने लाइनें लगा रखी हैं, ठीक है। कल हमारा नमाज जनाजा यहाँ से वहां से क्रॉसिंग करने लगे, वो गिरता गिरता बचा है। हमारा सरकार से यही मुतालबा है कि हमें यहाँ से बाहर जाने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हर रोज यहाँ पे हादसा वगैरह होता है। बाज बच्चे ट्रेन के नीचे आ जाते हैं, बहुत हमें मसले मिसाइल होते हैं। हमारा सरकार से छोटा सा मुतालबा है कि हमें यहाँ से एक बाहर तक पुल दे दिया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतालबा तस्लीम न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। डिप्टी कमिश्नर मियावाली की ज़ेर सदारत बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी का इजलास, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मतीउल्लाह खान, मेम्बरान अमन कमेटी और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मियांवाली में अमन और बैनुल मज़ाहिब हम आंगी कमेटी का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला मियांवाली अमन का गहवारा है, मजहबी मुनाफरत के खात्मे के लिए उलमाए किराम अपना किरदार अदा करें। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मतीउल्लाह खान का कहना था कि सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही है, मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुहर्रम उल हराम के दौरान किसी नए जुलूस और मजलिस की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमन कमेटी के मेंबरान ने अमन अमान बरकरार रखने के लिए ताउन की यकीन दहानी करा दी। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। जहांपुर इंतजामिया मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर जुल्करनैन सलीम की ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास बुलाया गया। जौनपुर में मुहर्रम उल हराम के हवाले से इकदाम तेज, असिस्टेंट कमिश्नर और STPO सर्कल की ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास। मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी और इंतजामात के हवाले से अमूर ज़ेर बहस लाए गए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि मुहर्रम उल हराम का इवेंट इंतजामी हवाले से बड़ा इवेंट होता है, इंतजामी हवाले से एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो उसकी जो ये हमने उसकी प्रेपरेशन के लिए ये मीटिंग कॉल की थी। हम ना सिर्फ तहसील को देख रहे हैं, जहांपुर बहुत बड़ी तहसील है, ना सिर्फ MC के देख रहे हैं बल्कि हम बाकी यूनियन काउंसिल में भी जहाँ जहाँ जुलूस हो रहे हैं उन सब के मामलात को देख रहे हैं। SDPO सर्कल का कहना था कि इजलास में रेस्क्यू, म्युनिसिपल कमेटी, मैपको और महकमा सेहत समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शिरकत की। पुलिस ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से प्लान तरतीब दे दिया है। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। जहांपुर तहसील में मुहर्रम उल हराम के हवाले से पुलिस ने
फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम कर लिए हैं। आज इस सिलसिले में तहसील अमन कमेटी की एक मीटिंग हुई है, जिसमें एसी साहब और मैंने यहाँ और इसके अलावा तमाम जो हमारे महकमे हैं, जिसमें 1122 है, हॉस्पिटल है, बल्दिया है, वापडा है, इसके तमाम अफसरान मौजूद थे। तमाम महकमों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। अमन कमेटी के मेंबरान का कहना था कि वो इजलास में मदऊ करने पर इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने मुमलिकत पाकिस्तान में अमन व अमान बरकरार रखने की यकीन दहानी भी करवाई। इजलास के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ भी करवाई गई। कैमरामैन जुनेद जावेद के साथ जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल की ज़ेर सदारत इजलास, डीपीओ और अमन कमेटी के मेंबरान की शिरकत। मुहर्रम उल हराम में भाईचारे की फ़ज़ा कायम रखने के अज़्म का इजहार। खानेवाल इंतजामिया मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मुतहरिक हो गई। अमन कमेटी के मेंबरान से मीटिंग की डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी का कहना था कि जुलूस रूट्स पर बेहतर इंतजामात किए जाएंगे। तहसील लेवल के ऊपर ये मीटिंग्स हो गई हैं और थाना लेवल के ऊपर भी डीपीओ साहब की रहनुमाई में इनके जो अहलकारान हैं उन्होंने थाना लेवल पर, सर्कल लेवल पर भी ये सारी मीटिंग्स कर ली हैं। आज के इजलास का बुनियादी मकसद एक बैनुल मज़ाहिब और बैनुल जो फ़िक़ही मजहबी रवादारी है उसको फ़रोग़ देने का था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम जो अमन कमेटी के मेंबरान थे उनका बहुत ही मस्बत और बहुत ही आपस में बरादराना रवैया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल का कहना था कि अमन कमेटी के मेंबरान मुहर्रम उल हराम में भाईचारे की फिजा कायम रखने के लिए अपना किरदार अदा करें। मुहर्रम 2024 जो है उसमें हम पूरा कोशिश करेंगे कि अमन अमान से गुजरे और जो फ्लैश पॉइंट हैं और ट्रबल पॉइंट्स हैं जहाँ इशू बनते हैं वो पहले से सॉल्ट आउट हो जाएं, उनमें मैक्सिमम में एग्रीमेंट लिखवाए गए हैं। पुलिस इंशाल्लाह इस दफ़ा तैयार है और ज़्यादा, और उनकी भी ब्रीफिंग करके हम इंशाल्लाह मुहर्रम को अच्छे तरीके से गुजारेंगे। अमन कमेटी के मेंबरान ने जिले इंतजामिया को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रूही, खानेवाल। पोलियो से पाक मुआशरे कमीशन बहावलपुर इंतजामिया शहर को पोलियो फ्री बनाने के लिए मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर का कहना है कि पोलियो मुहिम आवाम के ताउन के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। बहावलपुर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में पोलियो के खात्मा के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर ने 1 जुलाई से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम का आगाज बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि आवाम के ताउन के बगैर पोलियो मुहिम को कामयाब नहीं बना सकते। शहरियों से ताउन की अपील करते हैं। बहावलपुर अल्हम्दुलिल्लाह पोलियो फ्री रहा है, लेकिन लास्ट जो हमारी कैंपेन चली उसके बाद जो सैंपल्स लिए गए तो उसमें एनवायरमेंटल सैंपल हमारी एक यूसी में अहमदपुर में पॉजिटिव आ गया था। तो उसका जब हमने ट्रेस किया तो वो वायरस बेसिकली ओरिजिनेट कराची से हुआ, तो वो हमारा ख्याल है कि शायद कराची से कोई गेस्ट आए थे। तो उस वक्त तो हमने एक स्पेशल कैंपेन 3 तहसीलों में चलाई थी, अभी पूरे जिले में ये चल रही है। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि पोलियो एक मूजी मर्ज है जिसका शिकार जिंदगी भर अपाहज रहता है। इस हवाले से अमले की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 8.5 लाख के करीब बच्चे हैं जो वैक्सीनेट किए जाएंगे, तो आपके तवज्जुह से जरूरत इस अमर की है कि जब तक पेरेंट्स खुद प्रोएक्टिवली अपने बच्चों को ये कतरे नहीं पिलाते तब तक पाकिस्तान को पोलियो फ्री करार देना ये नामुमकिन है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि गफलत बरतने पर महकमा सेहत के 3 मुलाजमीन को शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं। गफलत बरतने वाले मुलाजमीन नौकरी से भी जा सकते हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद ज़हीर, रोही, बहावलपुर।